तो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये रिवीजन क्लास है। इसमें सबसे पहले आई टेक केयर ऑफ योर क्वेरीज। अगर कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी। जो हमने अभी 3 डेज से जो वॉट एवर रिविजन वी आर डूइंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट कंटेंट, सो यू कैन आस्क मी हियर। और अदरवाइज, if you want to if you didn't understood any subject in the treatise 7 or anything, then we can go through. Otherwise we'll go through the diagnosis part. Okay, so any query, anything? Okay, first, for 15 to 20 minutes or 30 minutes I'll ask you some questions, so be ready for the answers. Just raise your hand. Don't, reply. Everyone start replying together. Don't do like that. Just raise your hand like this. Okay? Then I'll tell you. Then you open your mic and give me answer. Correct? Is it okay? Okay, ma'am. Okay. So my first question. Before that, everybody please open your video. Don't keep it closed so I can see your beautiful faces. Namaste, very good morning. Very good morning. Very good morning. So please keep your video open and keep your mic voice close. Audio close करके रखिए, वीडियो ओपन करके रखिए. So आज मजा आने वाला है. Okay, so my first question to you: what is the source point of urinary bladder meridian? Urinary bladder में what is the source point? UB64. अच्छा, मैंने बोला था ना हैंड रेज करना है पहले. तो आप ऐसे आंसर दोगे तो किसी को देखिए, मे भी पता है क्या होता है. दे आर few people they are thorough enough, and few people are there they have to think first, है ना, they have to calculate. तो जो स्मार्ट है उन्होंने तो फट से आंसर दे दिया एवरी टाइम, तो बाकी लोगों का क्या होगा. तो वी हैव टू गिव द चांस टू एवरीवन. सो फर्स्ट रेज योर हैंड एंड देन रिप्लाई. करेक्ट? ओके, सो यूबी का तो डन. Okay, what is the source point of pericardium meridian? V. Subhashini. Yes. Subhashini ji. P7, madam. What is your answer? Subhashini. P7, pericardium 7. Pericardium 7. Correct है, pericardium 7. Okay. So pericardium 7 because हमें nail से देखना है. We have to see from the nail, not from the first point. So P9 is here, and this is a wind point. P8 heat point, and P7 earth point, means this is a source point. So earth points are the source point for the yin channels. Okay, so yesterday we have already cleared, but this was the revision. Okay, so there are few besides from 14 meridians or 12 meridians, not 14, 12 meridians, we have some few more source point apart from the 12 points. So there's a one point for the chest and fat tissues that treat anxiety, psychosis, that will calm your mind, that is good for neurosis. So there is a source point in our body for the chest and fat tissue. Fat होता है ना, कहीं कहीं fat deposit हो जाता है, तो fat tissues के लिए, and for the chest area.
So there is a source point. So anybody can tell me what is that point? Okay. नहीं पता? Okay. That is conception vessel 15. So CV15 is the source point for chest and the fatty tissues. तो ये आपके CV15 किसका पॉइंट है? चेस्ट एरिया का पॉइंट है एंड इट इज बिलो द स्टर्नम बोन, जहां पर एंड हो रही है. There is the CV15. You can check your sternum bone and the end point of sternum bone. There is a CV15 point. There is the move front point of heart. Okay. So one more point I'll ask. There is a source point for abdominal and membranes. Abdomen area और membrane, जो हमारी membranes होती हैं, every organ have their membrane. So we have a point that will tonify or will function membrane की elasticity को maintain करके रखता है, yang organ को tonify करके रखता है. So there is a point in a body which tonify yang energy, yang chi and yang organs. होल बॉडी यांग ऑर्गन का एक पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट. यू ऑल नो GV20 मैडम. है. GV20. GV20. गॉल ब्लैडर 20. GV20. जीबी मीन्स गॉल ब्लैडर. आर यू सेइंग Governing vessel. governing vessel? No, no, no. G Governing vessel, not 20. Oh, CV this 17. this point is only for to improve the yang energy. TW5. TW5 will improve the energy of triple warmer. Triple warmer fight. No. CV12 madam. CV12 is a movement point of the stomach. तो वो स्टमक को करता है, स्टमक के स्ट्रक्चर को ठीक करता है. अच्छा अच्छा. So the point name is conception vessel 6, CV6. So अगर yang chi deficient है तो first point we have to choose CV6 tonification. अगर yang chi, if yang chi is deficient, yin is excess, like spleen yang deficiency, kidney yang deficiency, lungs की deficiency, spleen की deficiency. So we should choose CV6 tonification. Okay? मैम यांग ची ओवरऑल या किसी Overall. पर्टिकुलर? No, no, I'm asking overall. पूरी body, full body. For all the meridians. Yes, for all the meridian, for whole body. तो मैम कैसे पता चलेगा कि होल बॉडी की यांग कम है, मतलब सिर्फ ठंड लग रही हो तो? We have gone through ना so many symptoms. तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा. यांग ची अगर डेफिशिएंट होगी तो swollen body, water retention, swollen tongue and ऐसे chilliness, excess urination, बहुत सारे ऐसे symptoms डिफरेंट डिफरेंट आते हैं ना. जॉइंट्स पेन, एसी की हवा अच्छी नहीं लगेगी, उसमें जॉइंट्स पेन आ जाता है. दैट इज ऑल्सो यांग डेफिशिएंसी. ओके, लंग्स में पानी भर गया या ऐसे कहीं भी. मैम अगर एसी में सोने या कूलर में सोने के बाद उठने पर अगर बॉडी स्टिफनेस है, बैक पेन में ऐसा हार्डनेस फील हो रहा है या पैर में, तो भी क्या है सर मैम यांग ची डिफिशिएंट होगी? यस ऑफ कोर्स. मैंने तो मैम ऐसे फिर भी उसमें पेशेंट किसका देखे ट्रीट हैं. करेंगे? आपको मैं एग्जाम्पल दूं कि ऐसे पेशेंट जो कहते हैं कि
एसी में नहीं सो सकते, या डायरेक्ट एसी की हवा या डायरेक्ट कूलर की हवा में सो, तो मॉर्निंग में उठो तो देयर इज अ पेन इन द बॉडी. ओनली प्रेसिंग kidney yang deficiency point by the probe, only pressing the points, and pain get vanished. It is so Any specific effective. point, ma'am? Huh? Any specific point? No, kidney yang deficiency के protocol की I am just talking about. Okay. कितनी मधुर होती है रात्रि में, आपको जलन आना शुरू होती है. ये somebody is talking, like I don't know who is talking. दोनों की अपनी उपयोगिता है. ऐसा किसी का वॉइस आ रहा है बीच बीच में. Yes, ma'am. ये ज्ञान, ये ज्ञान में ये छिपा होता है, yin में ज्ञान भी छिपा है. किसी और का कोई क्लास साइड में भी चला रखा है किसी ने? प्लीज स्टॉप कर दीजिए उसको. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. अच्छा, गैदरिंग ची ओरिजिनल की yesterday we have gone through ना, various key. So there is a point, one point which tonify original key directly. Can you tell me what is that point? There is a single point which yeah, Shailja, GB4. yeah, tell me. GB4. Sorry, are you saying governing vessel 4? Yes, madam. Governing vessel 4 is stored essence. Kidney produce original key. CV4. K7. No, CV4 for the all yin meridian or for the blood tonification. K3. LI4, ma'am. LI4. कुछ तो होगा ही. K3. K27. Kidney Or 3. K20. CV12. See, I am talking about source point. And There is a K3. source point which tonify directly original key. K3. मतलब कि K3. एसेंस को भी कोई एक पॉइंट है जो एनर्जी, किडनी को एनर्जी दे देता है जिससे ओरिजिनल की ठीक से प्रोड्यूस हो और सारे K3. ऑर्गन में सर्कुलेट हो. मतलब ओरिजिनल की बनाया किडनी ने, बट all the organs are not getting that key. So circulation is very poor. So there is a point called K6, ma'am. it's a point of source point of triple warmer. Okay. What is the source point of triple warmer? TW4. Yes, TW4. TW4. So it tonify original key directly and circulate the original key in various meridian. Okay. So next question is, chi or key is transported downward by which organ? Lungs. वेरी गुड. हाँ, सारे वो 3-4 लोग आंसर दे दीजिए बेचारे, और लोग क्या करेंगे? किसी को कंफ्यूजन है व्हाई लंग्स? लंग्स इज द करेक्ट आंसर, बट इफ एनीबडी हैव कंफ्यूजन कि व्हाई इट, देन यू कैन आस्क मी. और कोई आपको रिप्लाई नहीं देने वाला. The movement is downward. Okay. Sorry, sir. Om Prakasham, sir, are you saying something? The movement of the lungs is downward. I think. Yes. Next question is, edema on the leg and ankle can be due to which energy? Kidney. Which energy? Kidney तो ठीक है, but which energy? Coldness energy. Kidney coldness.
मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक किडनी कोल्डनेस ऐसा कुछ। किडनी यांग डेफिशिएंसी। किडनी की Kidney iron deficiency. यस Kidney रेनी जी वेरी गुड, दिव्या जी वेरी गुड। किडनी यांग डेफिशिएंसी, there is no protocol like kidney coldness, na? So this is called kidney yang deficiency producing empty cold. किडनी में फुल कोल्ड हो गया ऐसा नहीं सुनने आता है। किडनी एक्सेस नहीं होती, किडनी इज ऑलवेज डेफिशिएंट, नेवर एक्सेस। सो फुल कोल्ड या फुल हीट जैसा नहीं होता किडनी में। yin deficiency and yang deficiency can be there, so it is never excess, always deficient. Clear hai? So kidney yang deficiency is the correct answer. Okay, temporal headache, Liver access, ma'am. may be due to which organ? Gallbladder. gallbladder. It can be stomach. अच्छा Shailja said Gallbladder. gallbladder, Satish madam said stomach. Anybody else? Liver wind excess energy. Liver wind excess और लीवर हीट। लीवर हीट से भी हेडेक स्मॉल होता है। इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, टेम्पोरल हेडेक स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं होता। सी टेम्पोरल हेडेक आइदर गॉलब्लैडर और लिवर। गॉलब्लैडर। फ्रंटल हेडेक फ्रॉम द स्टमक। Gallbladder, ma'am. So first answer would be gallbladder. Could be liver wind, but अगर ऐसे पूछा जाए कि टेम्पोरल हेडेक तो ड्यू टू गॉलब्लैडर। मैम may I ask you something? यस प्लीज। मैम ये जो हेडेक ऐसे आधा होता है और उसमें वोमिट होती है जिसको माइग्रेन बोलते हैं, वो उसका रीजन क्या होता है? देखिए वैसे तो इसका कोई एक रीजन पता नहीं चला अब तक। इट्स नॉट क्लियर कि इफ देयर इज एनी वन रीजन, बट आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम it is due to blood deficiency. Wind get excess, means chronic blood deficiency, like in the girls after the puberty, they have a heavy period, heavy bleeding, menstrual blood. So उसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है। some women they have the anemia, एनेमिक होती है तो ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। सो ब्लड डेफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जिनको बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, तो आफ्टर फ्यू इयर्स दे हैव विंड एक्सेस, तो ऐसे लोगों में माइग्रेन ज्यादा देखा गया है। एंड सेकेंडली फ्रॉम द हार्मोन इम्बैलेंसेस, तो हार्मोन की वजह से भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी विंड एक्सेस इज द रीजन। तो लीवर एंड गॉलब्लैडर एक्सेस हो जाते हैं, विंड एंड फायर एक्सेस हो जाती है तो माइग्रेन होता है। बट आप 6th सेमेस्टर में और 5th में यू विल गो थ्रू 15 मेनी टाइप ऑफ हेडेक्स, माइग्रेन इज वन ऑफ देम। सो आप अलग अलग, अगर साइड में एक साइड होता है हेडेक और पूरे हेड में होता है, ओनली बैक में होता है, ओनली फ्रंट में होता है, सो बहुत सारे वेराइटी ऑफ हेडेक्स आप पढ़ेंगे। एक्चुअली मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो पायलट है, तो उसको हमेशा टेक ऑफ में जो है वो हेडेक होता था, तो वो नेक्सोडम करके मेडिसिन लेती थी। नाउ शी इज प्रेग्नेंट और उसको ये इतना भयानक पेन होता है, वो पॉइंट प्रेस कर दी, उसको सारे पॉइंट ये कर दी, फिर भी उसको आराम नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मेडिसिन तो ज्यादा ले तो नहीं इसका सकती मतलब वो। वो विंड प्रेशर से हेडेक बढ़ता है ना, तो विंड इज एक्सेस, तो उनको पर बोलिए उसको आराम नहीं होता है। गॉलब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 16 एंड 20 पॉइंट को सिडेट करके ही टेक ऑफ करे। नहीं अब तो वो प्रेग्नेंट है, तो अभी तो अभी take तो off नहीं, मतलब अलाउड नहीं लग होगा। जाएगा। हाँ
तो वैसे यदि उसको अब हेडेक हो रहा होता है तो उसको क्या करना चाहिए? आप ऐसा करो, ये तो देखो उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि अभी इसके इनके सिम्टम्स मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वैसे तो विंड एक्सेस ही लग रहा है जैसे आपने बताया, विंड एंड हीट एक्सेस, लिवर गॉलब्लैडर ऑलवेज देयर इन द माइग्रेन। तो अगर ओके। ब्लड डेफिशिएंसी है तो स्टार्ट गिविंग ग्रीन जूसेस, पोमग्रेनेट जूस, स्पिनचेस, मतलब वॉट एवर थिंग दैट कैन इंक्रीज द ग्रीन। ब्लड ओके। प्योर वे में, वो तो देना ही देना है, ब्लड की उसको ठीक रखना है। बट अगर हीमोग्लोबिन भी कम है, आरबीसी भी कम है, तो वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पहला चीज होना चाहिए। सेकेंडली आप लिवर हीट और लिवर विंड को कम करिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आयुर्वेद में, वो मतलब सब चीज को बैलेंस कर देता है। 2 and 3 नंबर, फिंगर नंबर 3, 4, 5, थर्ड स्पाइरल, 2, 3 sedate, 1, 4 tone. This is the best treatment for migraine. फिंगर एक नंबर बार 3, बता 4, दे। 5, थर्ड स्पाइरल, फिंगर 2, नंबर 3 फिर से, सीडेड, 1, हाँ 4 फिर से टोन। बोल रही हूँ। फिंगर नंबर 3, 4, 5, थर्ड स्पाइरल, 2, 3 sedate, 1, 4 tone. पर अभी मतलब प्रेगनेंसी में ये अपन मेथी दाना यस, से करें? हाँ हाँ। क्योंकि फिंगर ट्विस्टिंग तो करते हैं, मेथी दाने की स्ट्रिप भी लगाती हूँ मंथ वाइज उसको मैं, पर हाँ बस जी, ये हेडेक का बहुत इशू है उसको। ये लगाइए, फिर ठीक हो वो, जाएगा। क्योंकि गुड वो मॉर्निंग लाइट मैम। नहीं सहनती है, आवाज नहीं सहन होती है। हेलो अभिषेक जी, कैसे हैं आप? मैम बहुत अच्छा हूँ मैम। बहुत अच्छी क्लासेस थी, बहुत अच्छी क्लासेस में आज भी लेनी आप। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल क्लास। मैम एक क्वेश्चन था मैम, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था थोड़ा सा कि मैम ब्लड डेफिशिएंसी में विंड अगर एक्सेस है या यांग राइज कर रही है, तो उसमें पहले हम क्या ट्रीट करें? एक्सेस को निकाल दें या पैरेलली? आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा हो कि पैरेलली हम दोनों कर सकते हैं, ब्लड को भी रेज कर लें और विंड को पहले भी डाउन कर लें। एक्सेस को पहले एक्सेस को घटाना होता है, खासकर लीवर गॉलब्लैडर अगर डेफिशिएंसी की वजह से एक्सेस हुए हैं, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट शुड बी टू रिमूव द एक्सेस कंडीशन। ओके, तो हम पैरेलली नहीं नहीं, चलना चल मतलब सकते बेटर हैं, नहीं लेकिन एक्सेस को रहेगा। नहीं घटाया तो वो, अगर आपने यिन को टोन कर दिया तो वो काम नहीं करेगा। पहले एक्सेस को करना है। आप थर्ड फोर्थ डे से पैरेलल कर सकते हैं, दोनों। प्रियोरिटी हमारी एक्सेस कंडीशन है। ओके, थैंक यू। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर बिटर टेस्ट है माउथ में होल डे, सो इट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? liver, स्टमक हीट और liver, लीवर। यस दिव्या जी, इट इज लीवर, करेक्ट। सो फुल डे अगर है तो लीवर, इफ इट इज इन मॉर्निंग ओनली देन heart, It is hard, hard. हार्ट। ओके, अगर मूविंग पेन है बॉडी में पूरी में मूविंग पेन है, कभी यहाँ हो Due to रहा है कभी stagnant यहाँ, तो क्या है ये? विच एनर्जी? लीवर wind, liver, wind energy, एनर्जी। wind energy. Stagnant लीवर एनर्जी। See, this is wind due to stagnation of liver की। स्टैग्नेशन ऑफ की से विंड एक्सेस होके बॉडी में मूव करती है। सो बोथ आंसर इज करेक्ट, बट बोथ इज टुगेदर। एक्सेस विंड ड्यू टू liver. लिवर की स्टैग्नेशन। आधा बोलेंगे तो भी सही नहीं है, पूरा बोलना है। परप्यूरा क्यों होता है? व्हाट इज परप्यूरा? lungs परप्यूरा में में देयर इज अ रेड पैचेस ऑन द स्किन। ची सिंकिंग, हम्म, प्लीन ची सिंकिंग। Energy. प्लेन। lungs is responsible maybe. किडनी से, किडनी की Blood gases, ma'am. स्किन इज रिलेटेड टू किडनी, सो किडनी से की Spleen chi sinking. स्किन रिलेटेड टू लंग्स। Lungs, see the correct answer of the Renu ji has given
spleen, due to spleen की sinking, blood comes out from the blood vessel and it comes out from the vein below the skin. So we got red patches. So this is मैम हम spleen. इसको ऐसे भी ऐसे नहीं कह सकते स्प्लीन इज नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, हाँ फिर वो वही ब्लड हुआ spleen is not controlling blood कंट्रोलिंग due ब्लड, to spleen की sinking. वो स्किन के अंदर आके भरने लगता है ब्लड। हाँ स्प्लीन की सिंक हो जाती है तो वो ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो परप्यूरा हैपेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर कोई मुंह से सांस ले रहा है, इफ वन ओनली ब्रीथ थ्रू माउथ, व्हाट डज इट इंडिकेट? Breathlessness. Lungs deficiency. deficiency. यस इट इज लंग्स डेफिशिएंसी, वेरी गुड आंसर। तो मुंह से सांस ले रहा है तो लंग्स की डेफिशिएंसी से होता है, तो ऑलवेज इट इज डेफिशिएंसी जब भी कोई मुंह से सांस ले रहा है। Epistaxis means nose bleeding. Why it happens? Due to excess heat. Be specific. Heat in which organ? Lungs. lungs, heating. No, it is heat in liver. Liver heat बढ़ने से lungs की heat भी बढ़ती है, तो लीवर हीट बढ़ने से एपिस्टैक्सिस भी हो सकता है, लीवर हीट बढ़ने से माउथ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, लीवर हीट बढ़ने से यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज लीवर हीट। ओनली जॉ में अगर ब्लीडिंग हो तो ये स्टमक हीट होता है, ठीक है। अच्छा एडिमा फेस पे आ जाए तो ये क्यों होता है? Lungs में. Lungs. यस Lungs. लंग्स की डेफिशिएंसी, लंग्स की डेफिशिएंसी कॉजेज एडिमा ऑन द फेस। क्लियर है? पेल लिप्स बताइए। Blood deficiency. Blood deficiency. यस वेरी गुड, अब तो यू आर थॉरो। तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही पता है। 50 में 50 मार्क्स इन TCM, 50 में 15 आयुर्वेदा, 50 में 15 BHB। अब वो बात अलग है, एग्जामिनर 50 कभी देता ही नहीं है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछते फिर भी मार्क्स नहीं मिलते मैम। बिकॉज एग्जामिनर, अब आपने बताइए, अच्छा जैसे मैंने पूछा कि हेडेक या क्या टेम्पोरल हेडेक का कारण क्या होता है ना? अब आपने बोल दिया कि विंड एक्सेस। इज इट नॉट द कंप्लीट आंसर ना? आपको लगा मैंने सही आंसर दिया, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, तो कंप्लीट मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। मैम रिटर्न में भी इतना लिख कर आते, इतना असाइनमेंट भेजते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं मिलते, इतने डायग्राम बना लेते हैं। सुंदर सुंदर लिखिए, खुला खुला कलर पेन से। एक्चुअली मैम कितना शॉर्ट क्वेश्चन कितना होना चाहिए? 1 or 2 पेज जस्ट, बस ना मैम? बस बस। और अगर हमने ज्यादा कर दिया तो क्या मार्क्स कट हो जाएंगे? नहीं, मार्क्स कटते नहीं, बट ज्यादा लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैम डायग्राम्स कलर ड्रॉ करें या पेंसिल से ही करें, क्योंकि जैसे बचपन से तो ऐसे ही करते थे। पेंसिल से उसको करके लेबलिंग देखिए, और वो सब। कुछ लोग क्या करते हैं, इतनी सी जगह बची है उसी में डायग्राम बना दिया जल्दी से पेंसिल से, तो उसमें कैसे मार्क्स मिलेंगे? या फिर उसको आप कलरफुल बनाइए, उस पे उसकी लेबलिंग। लाइंस हाँ पूरी इसको मार्किंग करिए, तो मार्क्स कम फुल मिलेंगे ना। हाँ तो कलर्ड डायग्राम और कलर्ड लेबलिंग चलेगा ना? यस बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, बच्चों की तरह। बचपन याद आ रहा है मैम। अच्छा, व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस? 4 टाइप ऑफ डायग्नोसिस। Diagnosis by looking, diagnosis by smelling, diagnosis by hearing, diagnosis by देखकर सुनकर and feeling, diagnosis by feeling. शैलजा जी प्लीज ओपन योर वीडियो।
हाँ कैमरा नीचे देख करिए, जस्ट लिटिल लोअर साइड योर कैमरा। नाउ देख योर कर, आंसर। सुनकर, महसूस कर और फिर डायग्नोज करना चाहिए। 4 types of diagnosis diagnosis. by diagnosis Looking, by smelling, hearing, diagnosis So smelling, all the and answers are correct. So how many types? 4 four types. four types. 4 types. 4 By types. looking, By by hearing, asking, By हियरिंग, smelling, by Smell. hearing and smelling, both hear feeling. and smell, कान से और नाक से दोनों ना, तो एक साथ it is in one line, hearing and smelling, and by feeling. by asking, Feeling. And asking. Yes, looking, asking, hearing, smelling, Hearing, and feeling. feeling. Okay, these are the 4 type of diagnosis. So by looking में what you will look out? Look at the face. उनका फेस कैसा है, उनकी चाल ढाल कैसी है, Texture of कैसे the मूव कर रहे हैं, बाल and Yes. का बाल कैसा नेल्स है, कैसे हैं, उनकी टंग कैसी है, eyes देखना आईज है, कैसे हैं, lips देखना है, we can see the constitution of the person. nervousness, ma'am. उनका बात करने का तरीका कैसा है। Yes, very good. मनीषा अग्रवाल जी, तो ये तो गॉट फुल मार्क्स। मैम अभी नहीं इट्स एग्जामिनर गुड। के सामने नहीं। आंसर देने से वो माइंड में खुद के भी रजिस्टर हो रहा है, Right, correct. ब्रेन में। सो एवरीबडी प्लीज गिव आंसर। एनीबडी एल्स? Over. We know the Rajogun, Tamogun, all those things. अभी तो राइट नाउ डायग्नोसिस बाय लुकिंग में व्हाट यू हैव टू लुक, you have to look out constitution of the patient. Yes, yes. First thing, क्या पहली चीज देखोगे आप? Constitution. There are 5 types. मोटा है, दुबला है, type or लंबा है. water type or metal type. Yes. कौन सा? 5 एलिमेंट है, तो किस टाइप का है? Yes. सो वाटर टाइप के लोग चलिए बताइए, व्हाट इज द वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन? Round body type. राउंड फेस, वाटर टाइप के राउंड फेस Brown face. है, राउंड बॉडी, गोल गोल बॉडी है। Yes. एंड कलर कैसा है? फेयर है, ब्लैक है, Fair. डल, Fair complexion. Fair white complexion. color. Fair. वाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन। Yes. हाइट कैसी होगी? बहुत उतना नहीं है. Chota. stocky, short, बोने होते हैं, long body, short legs. शॉर्ट हाइट। सो राउंड राउंड होंगे, फेयर एंड शॉर्ट हाइट। Sure. बट स्पाइन इज Longer than. लॉन्ग, Legs. ज्यादा longer than- लंबी स्पाइन होती है ना? Hmm. एंड Or इमोशनली कैसे होते हैं? मेंटली Emotionally excited. मोर सेंटिमेंटल, इमोशनल and aggressive sometime, not every time but sometime they are aggressive. Digestive system, Digestive system is very strong. they have strong strong. water type लोगों का strong digestive system होता है, and they does not get sick easily. जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर सिक हो गए देन It takes long time. yes, टाइम लगता है इनको Time. ठीक होने में। ओके, Yes. Yes. एक चीज वाटर टाइप में है, इनमें सेक्सुअल डिजायरमेंट ज्यादा होती है रादर देन अदर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये इनको डिफरेंट बनाती है, Yes. ठीक है? एंड कैन बी लायर, अपनी बात बोलने के लिए झूठ मूठ गोल गोल बात बना देते हैं, खुद भी गोल गोल होते हैं, गोल गोल बातें भी बनाते हैं। Yes.
वाटर टाइप लोगों का ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट किडनी एसेंस और किडनी की होता है। Yes. वाटर टाइप है ना, तो किडनी Yes. की वीक हो जाती है, Kidney. तभी बीमार पड़ते हैं। वाटर टाइप को अगर आपने पहचान लिया, देन इनका किडनी का ट्रीटमेंट करिए। बीमारी कोई भी आए, किडनी का ट्रीटमेंट जरूर करिए। सेकंड इज वुड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत पतले होते हैं। डार्क Constitution. दे आर ऑपोजिट ऑफ वाटर, करेक्ट। है ना? कैसे? यस। एक लैंग्वेज होती है, वर्ड होता है हड्डियां हड्डिया। मजबूत। हमारे इधर नॉर्थ में कहते हैं ये तो हड्डिया है। मीन्स बोनी पर्सन। Thin and tall. तो Thin बोनी and कैसे tall. होते हैं? दे हैव ब्रॉड शोल्डर्स, Broad shoulders. स्ट्रॉन्ग Strong bones. बोन्स, स्ट्रेट Back. स्पाइन, Fine. Hair color. है ना? बट देयर इज नो फ्लैश। Okay. ठीक है, दुबले पतले होंगे। इनको 10 रोटी खिला दो, फिर भी वैसे ही रहेंगे। कितना भी घी डाल दो, कुछ नहीं होगा। Digestive system very strong. उनपे कहते हैं ना, मांस नहीं चढ़ता, फैट डिपॉजिट नहीं होता, फैट टिश्यू एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट नहीं होता, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। दे आर बोनी पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ देखा है? ब्राउन कलर, बिल्कुल उस खुरदुरा सा बॉडी, वो उसका जो ट्रंक होता है, आप पकड़ो, है ना? उसमें फ्लैश नहीं, सॉफ्टनेस नहीं है। Yes. तो Kidney is सिमिलर rough. वे, कलर भी थोड़ा सा डल होगा, डार्क साइड होगा, सांवला गेहुआ कलर, है ना? दुबले पतले, ब्रॉड बोन्स जो है स्ट्रांग होगी, वेरी हार्ड वर्किंग। तो वुड इज रिलेटेड टू लिवर, Yes. तो दे गेट इजीली अफेक्टेड बाय Liver. liver tendency. yes, तो ध्यान रहे। liver heat can be increased or liver blood stasis could be there। तो वुड टाइप ऑफ वुमेन में यूटेराइन फाइब्रॉइड होने पर लीवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हेयर फॉल हो तो लीवर हीट सिडेट करने से हेयर फॉल ठीक हो जाता है वुड टाइप में। मैम इसमें पॉइंट कौन सा देंगे हेयर फॉल के लिए हम? इफ वुड टाइप कॉन्स्टिट्यूशन, देन सिडेट लीवर हीट। 4 पॉइंट्स होते हैं लीवर हीट के, लीवर 2, लीवर 3, गॉलब्लैडर Or 30 liver. एंड गॉलब्लैडर 20। सिडेट ऑल 4 पॉइंट्स, लेफ्ट एंड और राइट। मैम अगर किसी को थायराइड के लिए हो रहा है तब, साथ में थायराइड भी है? थायराइड की वजह से हेयर फॉल हो रहा, तो फिर तो थायराइड का पॉइंट देंगे ना, फिर आप इसका थोड़ी ना देंगे। फायर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? Reddish face. रेडिश फेस। Curly. देखिए, फायर जो फायर कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, दे वुड हैव कर्ली हेयर्स, दे विल वर्क वेरी फास्ट। अगर वुमेन है, महिलाएं हैं, सो यू नो फास्ट फास्ट दे आर गोइंग इनटू द किचन, फटाफट खाना बना दिया, फटाफट जाके कुछ और काम कर लिया। सो दे आर वॉकिंग फास्ट, डूइंग फास्ट, वर्किंग फास्ट, and they are beautiful, they are have heat in the blood na, so arteries and veins are strong enough। तो अगर इसका उल्टा कोई भी फायर कॉन्स्टिट्यूशन का है और अगर स्लो स्लो चल रहा है, तो मीन्स हार्ट ब्लड डेफिशिएंट हो गया, हार्ट ची घट गई। एंड फायर कॉन्स्टिट्यूशन के पीपल आर वेरी सेल्फिश, सेल्फिश नहीं, नॉन सेल्फिश होते हैं। मैच्योर्ड पर्सन।
ट्रू पीपल दिल से करते हैं, जो काम करेंगे बाय हार्ट करते हैं, विदाउट सेल्फिशनेस करते हैं, Yeah. बिना किसी स्वार्थ के, है ना। Yeah. और अगर एक्सेस हो गई हार्ट की तो कैसे हो जाएंगे? रेस्टलेस, Insomnia. palpitation, एंजाइटी, Hmm. ब्रेन। सबसे पहले हार्ट हाउसेज इन द माइंड, तो माइंड कैसा होगा? थोड़ा सा restlessness, एंजाइटी, स्ट्रेस्ड, एग्रेसिव, रेस्टलेस, मोर रेड फेस, रेड आईज। और जैसे आपने आवाज दी तो दे गेट स्टार्टल्ड, ऐसे सपने में अचानक से चौंक के उठ गए, झटका मिल गया. है ना, बिल्कुल से ऐसे। और स्लीपलेसनेस भी हो जाती है, Restlessness, ड्रीम insomnia. डिस्टर्ब स्लीप। Hmm. So this is all caused due to the excess heart heat. Excess heart rate. Hmm. Okay, so next is earth type constitution. So what is the earth type constitution? Speciality? Darkish. Heavy body. Heavy body, madam. Heavy Heavy body. body. लंबा चौड़ा बिल्डअप, अर्थ टाइप वाले, Big head. नो हाइट भी होगी एंड विड्थ भी होगी, Yeah. हैवी Like a लेग्स, gigantic. ब्रॉड जॉज, Chin. बिग हेड, Walks slowly. Hmm. करेक्ट। तो इट्स अर्थली, पार्थिव। Hmm. स्लो चलेंगे, फास्ट नहीं चलते, पार्थिव है ना, हैवीनेस है बॉडी में, हैवी भी होगा, लंबे चौड़े हैवी भी होंगे। और जो हो गया, दे हैव नो एम्बिशन, Yeah. कहाँ Very सेटल less हो गए, दैट्स इट। very less ambition. वेरी उसको काम, क्वाइट। Hmm. उसको कैसा घटाना मैडम? ज्यादा दिस इज वजन नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, कि so दे they would आर, bear. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि दे आर बाय बर्थ दे हैव दिस काइंड ऑफ नेचर, nature. Their body built is like that. है ना। बॉडी बिल्ड कैसा होगा? इट्स हाइट एंड विड्थ बोथ आर देयर, जन्म से. पार्थिव टाइप ऑफ बॉडी, दे हैव बल्की बॉडी ऑल्सो, स्लो वॉकिंग, रिलैक्सिंग इन द लाइफ। हाँ, एक Yes. बार गोल सेट हो गया, जॉब लग गई, ओके नाउ फ्री, Yeah. अब More वही कर रहे हैं। diseases due to overweight. Then how to reduce? ओवरवेट इज कम्स इन अंडर द वाटर एलिमेंट, ये ओवरवेट नहीं है, दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। By birth itself they are strong. स्प्लीन वालों की मसल, स्प्लीन स्टमक, अर्थ टाइप वालों की मसल स्ट्रांग होती हैं, लेकिन अगर वीक हो जाए तो रुमेटाइड आर्थराइटिस इनको हो सकता है। Hmm. स्प्लीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, वी नो ना, कि टंग में स्वेलिंग आ जाती है, और लो एपेटाइट हो गया, लूज मोशन हो गया, हैवीनेस इन द स्टमक, ये तो वी नो ना कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो अर्थ टाइप वाले को डेफिशिएंसी हो गई मींस स्प्लीन की डेफिशिएंसी, और बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? सिंकिंग हो जाएगी। Singing अच्छी. हाँ, तो प्रोलैप्सिस होंगे, वेरिकोज वेन्स होगा, हेमोरॉइड होगा। Yeah. So it is actually connected with और spleen. यस, स्प्लीन इज नॉट कंट्रोलिंग ब्लड में क्या होगा? Blood cannot be hold in the blood यस, तो vessel. हेमरेजेस हो सकते हैं, है Yeah. ना, ब्लैक पैचेस, रेड पैचेस, यूरिन इन द ब्लड, Yes. Yeah. blood in the All urine, sorry. sorts of blood problem. So these are the problem happen in the earth type people. Right. और मेटल टाइप, लास्ट में मेटल टाइप के लोग कैसे होते हैं? They walk slowly Walks slowly. They walk Face slowly. is and throats इनका जो fracture. फेस होता है वो ट्रायंगल होता है, जैसे अर्थ वालों का बिग हेड, जॉ Yeah. बिग होता है, इनका चेस्ट चौड़ा होता है,
36 इंच का वाला। नहीं, 52 इंचेस क्या चल रहा है आजकल भाई। एंड this neck is strong neck muscles, triangular face, loud voice, and जान के स्लो चलते हैं। Tongue will have हाँ, horizontal अगर lines in the तेज middle. चल रहे हैं, देखिए स्लो चलते हैं, लाउड बोलते हैं। Loud words, correct. अगर फास्ट चल रहे हैं और स्लो बोल रहे हैं तो मीन्स कि दे आर सिक। Yeah. उल्टा हो रहा है तो दे आर सिक। क्योंकि Ma'am, लंग्स की डेफिशिएंसी में वॉइस वीक हो जाती है ना। वीक वॉइस मीन्स लंग्स की डेफिशिएंसी। yeah. तो बाकी आप इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों में आपको डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस मिलेंगे। जैसे अर्थ टाइप के लोग यू कैन रिमार्क अर्थ टाइप कॉन्स्टिट्यूशन, फटाफट काम कर रहे हैं, फास्ट फास्ट काम कर रहे हैं, सेल्फलेस हैं, कर्ली हेयर है। और बहुत ज्यादा अर्थ, प्योर अर्थ फायर टाइप है, अर्थ नहीं फायर टाइप, सॉरी, Fire बहुत type. ज्यादा फायर टाइप है तो दे कैन बी सेंट। Oh. उनकी जो एनर्जी है ब्रेन की वो सेंट बना देती है उनको। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है उनमें, धैर्य अच्छा है, दे डू वर्क फास्ट बट दे हैव अ पेशेंस। तो ऐसे लोग पेशेंट होते हैं। फायर टाइप बोले ना मैम, दे यस, कैन बिकम फायर टाइप। सेंट। Fire type. अच्छा, पढ़ाई में कैसे होंगे? They will be good in studies. फायर टाइप के लोग जल्दी जल्दी पढ़ के समझ लेंगे और फिर जब बारी आएगी तो भूल जाएंगे। But will be opposite. लेकिन पढ़ लेंगे और 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा। अच्छा, वाटर टाइप के लोग कैसे होते हैं? वाटर टाइप के लोग पढ़ाई करते हैं तो मन नहीं लगता पढ़ने में। दे नो कंसंट्रेशन, बुक रखा सो गए। बुक खुली है, बुक इज ओपन बट दे आर स्लीपिंग। Okay. बट दे डोंट नो हाउ दे गेट मार्क्स, Oh. बिकॉज जो भी पढ़ते हैं वो थॉरो पढ़ते हैं, हो जाता है प्रैक्टिकल। दे लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिकल, Okay. प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखते हैं। और जो वुड टाइप कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, दे डू वेरी हार्ड वर्क इन द स्टडीज। दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में। इसकी विंड है ना, इधर से पढ़ा उधर से गायब, पढ़ा गायब, ऐसे पढ़ते रहते हैं, देन वो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप के लोगों का Qualities. मैडम मिक्स टाइप भी होता है क्या? मिक्स टाइप? हाँ, मिक्स टाइप तो वेरी कॉमन। इजीली मिक्स वाले तो ज्यादा होते हैं, कोई भी ओके सिंगल नहीं होता। नोबडी सिंगल, या वेरी रेयर कि एनी वन कॉन्स्टिट्यूशन इज डोमिनेंट। ऑलवेज देयर आर 2 or 3 मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सो दैट इज द डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम Yeah, but main sometime difference you can analyze, uh, sometime it's not possible to analyze. okay कभी कभी तो बहुत इजीली मिल जाते हैं। Hmm. मेटल टाइप के, वुड टाइप के को प्योर आप देखो, पतला दुबला बिल्कुल स्किनी या है ना, एंड बट बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैम लेकिन जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो डोमिनेट करेगा ना, वो ज्यादा होगा ना। यस, मैम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर किसी सकते हैं को क्या मैडम? मान लीजिए कोई मतलब विंडी टाइप का है, उसको चेंज भी कर सकता है हम लोग भाई? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता,
बट हाँ उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो एबिलिटीज हैं, if any ओके discrepancies in that ability, then we got to know this organ is weak. ओके डायग्नोसिस Excuse me, मैम मैम स्प्लीन की डेफिशिएंसी किसी को होती है, जैसे किसी को वेरिकोज वेन्स है और बाकी कुछ भी नहीं है, तो उनको ये ट्रीटमेंट देना चाहिए SP3 SP6 ST21 yes, of course ST36। देना चाहिए। वेरिकोज वेन्स तो है, बहुत हल्का फुल्का है तो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर दीजिए, ठीक हो जाता है। बट अगर ज्यादा है बहुत तो स्प्लीन की को टोन करना ही पड़ेगा। तो स्प्लीन की सिंकिंग में और स्प्लीन की बहुत ज्यादा एक्सेस डेफिशिएंट में इट कैन हार्म टू एनीथिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि लो एपेटाइट होगा ही होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वेट दैट मसल लॉस होगा ही होगा, इट्स नॉट नेसेसरी डायरिया होगा ही होगा। एनीथिंग कैन बी देयर ना, मे बी प्रोलैप्स है और कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी एक चीज जैसे मिलती है, हो किसी को सकता वेरिकोज वेन्स है है। हाँ और हाँ, ब्रेस्ट का भाग जैसे किसी का नीचे की ओर लेटक जा रहा है, तो उसको यस तो ये वाले पॉइंट लगाने चाहिए कि स्प्लीन यस, सिंकिंग के पॉइंट लगाने बिल्कुल बिल्कुल, सिंकिंग के। स्प्लीन सिंकिंग के लगाने होते हैं ना। स्प्लीन की तो उसी में आ गई ना, सिंकिंग में। ओके मैम कितने पीरियड के लिए लगाना चाहिए? 2 to उनके 3 तक months। लगाना मैम 2 to 3 months। Actually, it depend upon the seriousness of the कितना chronic है या कितना। नहीं, आई डोंट गेट यू क्वेश्चन मैम। For spleen deficiency, for how much period we should apply the all वो these तो points? बता दिए ना, 2 to 3 months। हाँ हाँ, नहीं तो मुझे लगा आप उसी का पूछ रहे। हाँ नहीं, वो साथी मैम वाज सेइंग समथिंग ना, तो दैट With regard to this only कि seriousness of the disease के हिसाब से यस, prolong होगा क्या? ओके ओके। अभी इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द बॉडी शेप एंड जो ओरिजिनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस कैन बी हैपन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। सो लॉन्ग टर्म चेंजेस से क्या होता है, एक्सेस होता है इंटरनल डिजीज। काफी लॉन्ग टाइम से कोई भी डिजीज हो तो हाँ, तो इंटरनल डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। Yes. लाइक अगर चेस्ट एपिगेस्ट्रियम मोटा हो जाए, बड़ा है ना, ये एरिया पिजन चेस्ट, स्टमक एक्सेस हो गया, जो एरिया बड़ा हो जाए दैट ऑर्गन कैन बी एक्सेस। जैसे इन द लेग, ये जो थाई एरिया इज फैटी एंड बिलो द नी एरिया इज थिन, सो दिस इज स्प्लीन की डेफिशिएंसी। मैम, मेनोपॉज के बाद जो वुमेन्स में वेट की प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, स्प्लीन के पूरे पॉइंट्स रहेंगे। यांग डेफिशिएंसी। और अगर दुबला पतला हो जाए तो यिन डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी। सो ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट बताइए चलिए। इफ ब्लड डेफिशिएंसी इन द बॉडी, जस्ट टेल मी 1 point for all over blood deficiency, 1 point। SP10 UB17. Yes, UB17. UB17 is an influential point of whole body's blood. Okay. अब शरीर मोटा कब होता है, पतला कब होता है? हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, दे आर 2 thyroid problem. Hypo में there's a less function of the thyroid gland, and in the hypothyroid excess functioning of thyroid gland. Okay, so in the hypothyroid, what happen in the body? Weight gain. Weight gain. Weight gain. Yes, very good.
हाइपोथायराइड में वेट गेन होता है बिकॉज थायराइड ग्लैंड का हार्मोन लेस क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है. A less quantity of thyroid T3, T4 is releasing in less quantity. Why? हार्मोनल सिक्रेशन. क्यों कम हो रहा है T3, T4? आयोडीन. थायराइड का नहीं, I am saying कि why it is secreting less quantity T3, T4. There are two hormone of thyroid gland, T3 and T4. T4. It is because iron deficiency. T4 is responsible for whole body का water element का balancing, सारे अदर हार्मोन्स का बैलेंसिंग, ये सब T4 करता है. तो ये क्यों लेस सीक्रेट हो रहा है? TSH बढ़ जाता है इसलिए. यस, है ना. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट Increase हो करता है? जाता है. TSH. ये इंक्रीज हो जाता है. हु इज सीक्रेटिंग TSH इन द बॉडी? Pituitary. Adrenal Pituitary. यस, वेरी गुड. ऑल सेकेंड सेमेस्टर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू इन द वाइवा. हु इज सीक्रेट TSH? TSH is secreted by which organ? So it is pituitary gland. Pituitary gland secretes TSH. What is the full form of TSH? Thyroid stimulating hormone. Thyroid बाकी लोग stimulating. क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी लोगों को एग्जाम नहीं देना है. Other people, do you want to give exam or not? सारे बंद करके बैठे हैं. Why? फिर वाइवा में कहेंगे मुझे आता नहीं है. अच्छा, भारती नहीं. अच्छा, जस्ट अपना हाथ उठाइए. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन सेकेंड सेमेस्टर? जितने सेकेंड सेमेस्टर वाले सब हाथ उठाएंगे. काफी सारे हैं यहाँ पर. भारती जी, जस्ट टेल मी हु सीक्रेट्स TSH? पिट्यूटरी ग्लैंड मैम. Pituitary gland. And Ma'am? what is the full form of CSF? Bharati. Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Very good, Bharati. Very good. So why you have not opened your video? हाँ, तो आप तो अच्छे हो. यूजुअली व्हाट वी थिंक कि जिनके भी वीडियो ऑफ हैं दे आर हाइडिंग देमसेल्फ. तो एग्जामिनर से बच के कहाँ जाएंगे? उमा जी, उमा, ओपन योर वीडियो. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESR? Erythrocyte sedimentation rate. ये पूछा जा रहा है उमा से. रिप्लाई दे रही है सुनीता पोथोरी जी. Yes, ma'am. नहीं, वेरी गुड आंसर, बट आई एम आस्किंग टू उमा. Okay. Uma, where are you? Open your audio. Okay, Sunitha Sankar Rangini. Sorry, I am not able to pronounce your name. Rangineni. Yeah, Rangineni. So tell me, what is the full form of ESR? Erythrocyte sedimentation rate now. Yeah, very good. Erythrocyte sedimentation rate. अच्छा, anybody else tell me, जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया है, what is the meaning of erythrocyte? राम्या मैडम. थोड़ा लाउडली आंसर दीजिए. RBC. RBC means erythrocyte. Okay, Mr. MS Murthy, what is thrombocyte? White blood cells, ma'am. No, that is leukocyte. Platelet. Okay. What is thrombocyte? Platelets. 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 Acha, tell me, answer me.
How many blood cells are found in the blood? 3 types. Three types. अच्छा देखिए, उमा मैडम ने कुछ बोला है। उमा जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए, ऑन योर वीडियो एंड गिव मी आंसर। अच्छा, नहीं कर रहे आप। डॉक्टर ओम प्रकाशम सर, हाउ मेनी ब्लड सेल्स आर फाउंड इन द ब्लड? 3 types, A, B, and AB. No, no, this is not blood cell. He is talking about the groups. These are blood group. How many blood cells are there in the blood? 3. Om Prakasham sir. RBC, WBC. अच्छा ये बताइए, 1, 2, 3, how many type of blood cells? 1 RBC, type, 2 type, 3 type, 4 type, 5 type. How many type of blood cells, Mr. Om Prakasham? 3 types. 3 types. Now tell me the name. Positive, negative, and Okay. See, इतने में तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा ना। Okay. Try saying RBC, WBC, WBC and platelets. platelets. 3 types. 3 type of blood cells found in the blood. Okay. Right. What is the smallest blood cell in all 3? Which is the smallest blood cell? Platelets. Paka? Sure? Yes. Sure, ma'am. Sure, lock कर दे। कला लाया है। मैम प्लेटलेट्स बोलेंगे तो थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं ना? Yes, thrombocyte भी बोल सकते हैं, प्लेटलेट भी बोल सकते हैं, both are same. What is the life span of platelets? 120 days. 120 days. 120 days. 120 red blood cells. No. 80 to 120 days. 120 for RBC. 120 days of platelets. 90 to 120, ma'am. 90 to 120. Red blood cells 120 days. 90 to 120. That is red blood cells. 8 to 10 days. Yes. Platelets कितने दिन में मर जाते हैं? How many days they can survive? 8 to 10. 8 to 10. 8 to 10 days. Tell me, 8 to 10 days. 8 to 10 days. And what is the lifespan of RBC? 120 days. 120 days. 120. 120 days. Where they have produce blood cell, कहाँ produce होते हैं? Bone marrow. Bone marrow. Bone marrow. Bone marrow. Blood vessel. Bone marrow में. Bone marrow. अच्छा, my another question, where is the blood form? In blood vessels. Blood vessels. No, not red vessels. No. Blood vessels. Have a long bone marrow. This is the correct answer, blood vessel. So please remember, if the examiner is asking, where is the blood cell form? The answer is bone marrow. And where is blood form? The answer is blood vessel. ठीक है? Okay. So, over today's class. Anybody else? और कोई query है? Anything else? मैम सेमेस्टर 3 कल से होगा? Semester 3, I guess Monday से? कल नहीं है फिर क्लास? कल क्लास है दूसरे रविंद्र सर. Yeah, morning there is no class tomorrow. Saturday we have Ayurvedic acupressure practicals by Dr. Manjushri Gupta ji.
Sunday we don't have morning class because morning in Bangalore, Karnataka Council of Acupressure, there's a conference. So Sunday morning there is no class. Sunday evening, Parul Agrawal's class is there from 7:30 onwards. And today there is a class at 8:30 by Dr. Nilpa Patelji and BHB on the same Zoom link. And Professor Krishnamurthy class is there at 6:30 in another Zoom link.